قربانیت شروع ہوئی ہے۔ بالخصوص تاریخ کے اعتبار سے قابیل اور حابیل کی قربانی کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، اور کوئی امت ایسی نہیں کہ جس امت پہ اللہ نے قربانی نہیں رکھی، لیکن فرق ہے پہلی امتیں قربانی دیتی تھیں تو فوری رزلٹ آ جاتا تھا۔ جانور ذبح کیا جائے، کسی میدان میں چھوڑ دیا جائے، جسے آگ آ کے بھسم کر دیتی تو یہ پہچان ہوتی کہ فلاں بندے کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ نہ کرے اگر یہ آج ہم میں ہوتا تو میڈیا کا دور تھا، ہر گلی میں لوگ کیمرے لگا کے کھڑے ہوتے کہ پتہ کرو بڑا بنا پھرتا ہے، قربانی دی ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ دعا ہے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور یہ پردے ہیں ہمارے رب کے امت محمدیہ پر، جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ گفتگو میں یہ نکتہ سمجھیے گا کہ پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے لوگ قربانی کے اوپر متفق ہیں، اور ہر مسلک قربانی کر رہا ہے۔ وہ قربانی جو بعد کی ہے، جب سب کا اس پہ اتفاق ہے، تو اس قربانی سے پہلے جو 20 قربانیاں ہیں ان پہ ہم اتفاق کیوں نہیں رکھتے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہی آج کی گفتگو کا مدعا، مقصد اور ہدف ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں پہلے ایک گزارش کر دوں کہ کچھ لوگ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن اندر کھاتے ہیں، ان کے سارے درد یا تو حج پہ جاگتے ہیں یا قربانی پہ جاگتے ہیں۔ کشتی کا حادثہ ہوا، سارے ٹوٹ پڑے کہ یہ قربانیاں چھوڑو، جانور ذبح کر کے کیا ملے گا۔ اس طرح کے غریب غرباء کو اگر یہی 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ دیا ہوتا تو آج یہ بیرون ملک ڈنکی پہ جا کے ظالم لہروں کے اور ان لوگوں کے جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں ان کا شکار اور لقمہ اجل نہ بنتے۔ گزارش ہے، بیت اللہ کے حج پہ چند لاکھ کے خرچے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے اور نہر ہوتے دیکھ کے تکلیف ان بیچاروں کی حق بجانب ہے۔ لیکن ہم ذرا گزارش کر دیں کہ آپ کی یہ تکلیف روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے کے پیسے کو جو آگ سگریٹ کے نام پہ لگتی ہے وہاں کیوں نہیں جاگتا؟ جب ایک شخص گھر میں گاڑیاں ہوتے ہوئے پھر 1 کروڑوں کی نئی گاڑی لیتا ہے، آپ کا احساس اس وقت کیوں نہیں جاگتا؟ لہذا اللہ کے شاعر کے خلاف جتنی مرضی ذہن سازی کر لو، اللہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ غریب ہو کے بھی، کمزور ہو کے بھی، یہ بھی سوال آتا ہے کہ ادھار اٹھا کے قربانی کر لیں۔ قربانیاں جیب سے یا پیسے سے نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی ہیں۔ حج اور عمرے بھی یہ صرف نوٹوں سے نہیں ہوتے، یہ وہ تڑپ ہے، وہ درد ہے، وہ دل، وہ تمنا، وہ آرزو ہے جو اللہ ایک مومن کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اور یہی دعا آپ مجھ سے قبل سارے مل کے کر رہے تھے کہ اللہ اس سال موقع نہیں بنا تو اگلے سال سے ہی۔ آپ لوگوں کو دعوت ہے
کہ جو ہر قربانی پہ، ہر حج پہ اتنا زیادہ قوم کا درد لے کے پھرتے ہیں، اسے سنبھال کے رکھیے، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں غریبوں کے اوپر سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے، وہ آج بھی امت مسلمہ ہے۔ یہ عشر کو چلائیں، نصف عشر کو چلائیں، صدقات کو چلائیں، زکات کو چلائیں، گھر گھر کو ڈھونڈ کے بچے، خواتین، مرد، عورتوں تلک اگر پہنچتے ہیں تو آج بھی یہ مسجد اور مدرسے سے جڑا ہوا ماحول ہے، وگرنہ باقی لوگوں کو صرف درد اور تکلیف اور احساس کا ایک وقتی جنون تو ہوتا ہے، لیکن سدا بہار وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اس گزارش کے بعد میں پوری امت مسلمہ کو 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والوں کے جتنے مسالک ہیں انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی بہت اچھی بات ہے، قربانی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس قربانی کے لیے اس سے پہلے جو بنیاد میں قربانیاں رکھی ہیں اسلام نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام آدم علیہ السلام سے چل کے جناب خاتم اور جناب خاتم علیہ السلام سے چل کے قیامت کے روز تلک ایک ہے، وہ بدلہ نہیں ہے، یہ دین وہی ہے۔ اور اس دین میں جتنے بھی معاملات اور عبادات رکھی گئی ہیں ان کے اندر بنیاد توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ اور یہ توحید مختصر سمجھ لیجئے، کائنات کی ساری ذاتیں مل جائیں اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ نے اپنی یہ خوبی، اپنی فطرت اس پہ انسان کو بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس فطرت میں بے شمار خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اصل میں اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ نے انسان کو ودیت فرمائی ہے، لیکن وہ صفتیں لے کے، وہ عادات لے کے، وہ فطرت کی بیس لے کے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اس چیز کا مالک بن گیا ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، ماں کے پیٹ میں دے کے لے لے اس کی مرضی، دنیا میں جنم سے پہلے وہ بلا لے اور صفت ختم کر دے، یہ اس اللہ کی مرضی ہے، کوئی اسے کہنے والا نہیں کہ ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کی صفتیں کہیں دھوکہ نہ دیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی صفات میں یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، ہمارے کان ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، رب کے قدم کا اس بات ہے، قدم ہمارے بھی ہیں، اللہ کے وجود کا تذکرہ ہے، وجود ہمارا بھی ہے، تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے رب جیسے ہو گئے ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ صرف ناموں کی مشابہت ہے۔ مثال، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو کیا ہم رب کے شریک بن گئے، رب جیسے ہو گئے؟ نہیں، ہماری زندگی ادھار ہے، مستعار ہے، رب کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کس موڑ پہ لا کے کب 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ کلر کا ہار کا حادثہ آپ کے سامنے ہے، یہ کشتیوں میں مرنے والے آپ کے سامنے ہیں، دن رات ہم حادثے دیکھتے ہیں، حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، یہ حادثے سبق دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کسی کو بچا رہا ہے، کسی کو مروا رہا ہے،
میری آنکھوں کے سامنے حادثہ ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ آگے بیٹا بیٹھا ہے چھوٹا سا، باپ چلا رہا ہے، ماں کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں حاملہ ہے، یہ ڈمپر کے نیچے آتے ہیں، سارے مر جاتے ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے ٹائر گزرنے کی وجہ سے وہ پٹاخے کے ساتھ نکل کے لوگوں ہے وہ پیدا کر رہا ہے۔ آپ نے زلزلے میں دیکھا جب دنیا مر رہی تھی، بلڈنگیں گر رہی تھی، وہیں ایک بچے کا جنم لینا یہ تیرے رب کی وحدانیت، صفات میں وحدہ لا شریک، ذات میں وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو توحید کے لیے ضروری ہے، سارا جگ مل کے تیرے رب کو جھکا نہیں سکتا، وہ اکیلا سب کو جھکا سکتا ہے۔ جھکانے کی طاقت یہ صرف اللہ کی ہے، وہ اسی لیے معبود ہے، ہم اسی لیے عابد اور بندے ہیں۔ وہ چاہے تو فرعونوں کو جھکا دے، نمرودوں کو جھکا دے، قارونوں کے سر جھکا دے، وہ ابو جہلوں کو یوں مٹی میں ملا دے، لیکن یہ ساری طاقتیں مل کے تیرے رب کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے تو زمین کو ہلا دے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سارے مل کے تیرے رب کے عرش کو نہیں ہلا سکتے، ان کی اپروچ وہاں تک نہیں، لیکن ساری دنیا تیرے رب کی مٹھی میں ہے، اور تیرے رب کے جو ہے وہ دائرہ کار میں ہے، تصرفات میں ہے۔ اس لیے سر جھکایا جائے گا تو صرف اس کے سامنے جس نے اسے بنایا ہے۔ ساری دنیا مل کے آئے اور کسی خاتون کو کہے کاٹ کے رکھ دیں گے سجدہ کر، مرد کو کہے تیرا قیمہ بنا دیں گے سجدہ کر، تجھے مار دیا جائے گا، میرے اور آپ کے مرشد ہادی اور رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، قیمہ بنا دیا جائے، ہڈیوں کا چورا بنا کے پیس کے آگ لگا کے راکھ کر دیا جائے، تو نے میری توحید پہ کمپرومائز کر کے شرک نہیں کرنا۔ یہ توحید ہر عبادت کی اساس، ہر نبوت کے اور رسالت کے اس دنیا میں چلانے کا بنیادی سیرا وہ اگر تھا تو توحید کے لیے تھا۔ اسی توحید کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے 20 قربانیاں دی۔ حضرات، مجھے آپ کی اس وقت توجہ تھوڑی مقصود ہے، بڑا اہم بنیادی نقطہ۔ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 27 غزوے اور ہجرت کے سفر اور پھر وہ سفر جو آپ نے تجارت میں کیے ہیں ملائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سفر سن کے دیکھ کر کے عقل دنگ رہ گئی۔ یہ جو سنت ابیکم آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس سنت کو لیا ہمارے محبوب نے، وہ بنی ان کی سنت، ان سے لیا ان کی آل نے اور اصحاب نے، یہ بنی امت مسلمہ کی سنت، ان سے لیا ہم نے، یہ بنی مومنین کی سنت۔ یہ سنت کے پیچھے کیا ہے؟ آپ دنگ رہ جائیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوتے ہیں، عراق میں بابل کی سرزمین میں۔ بعض نے 7 قرب و جوار میں ایک اور علاقے کا نام لکھا ہے، تو یہ علاقے وقت کے ساتھ نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ڈویژن بدلتے رہتے ہیں، صوبے بسا اوقات بدل جاتے ہیں، چینج آ جاتی ہے، ضلع بدل جاتے ہیں، تو یہ کوئی وہ تبدیلی ہو سکتی ہے، وگرنہ عراق کی سرزمین ہے، بابل ہے، وہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، جوانی میں آتے ہیں، ساری قربانیاں جن کا میں ابھی تھوڑی دیر میں تذکرہ کرنے والا ہوں، ان میں سے ایک انتہائی ہوش ربا دل دہلا دینے والی قربانی تھی کہ وطن چھوڑ دے، جلا وطنی۔ اس جلا وطنی میں
अपनी अहलिया को लेके इराक से शाम निकले। कहना बड़ा आसान है, आइए यहां से निकलिए, करीब जरा अफगानिस्तान का सफर कीजिए, पता चल जाएगा यहां से पैदल घोड़े गधे पे, पता चल जाएगा कि सफर क्या होता है, जलावतनी क्या होती है। मौसम, हालात, लोग, मुखालफत, अजनबीयत। शाम से फिलिस्तीन गए, फिलिस्तीन से मिस्र का सफर, मिस्र से जब हालात मजीद खराब हुए, लुबनान, लुबनान से उर्दन, उर्दन से सऊदिया की मौजूदा हुदूद तबूक, वहां से मदीना, मदीने से मक्का, मक्के पहुंचते ही बीवी बच्चे को छोड़ करके फिर हुक्म मिले कि वापस लौट जाओ। ये कुर्बानी अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह को वादा उला शरीक मानने वाला दे सकता है, वगरना आज के दौर में यह चीज मुमकिन नहीं। इस पैगंबर ने कितने सफर कर डाले, आधी दुनिया कदमों के नीचे रख के, हनीफ बन के, मुवाहिद बन के, अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए पूरी जिंदगी कुर्बानी का नमूना बना दी। आयत तो कुरान मजीद की है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन कभी देखना हो तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। वो पैगंबर जिनको कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चाल ढाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मगर सूरतुल मुम्तहना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उस वक्त जिन्होंने उनका साथ दिया, उनकी जिंदगियों को रब ने लक़द कानत लकुम, ये ऐसे ही नहीं है, अल्लाह ताला की वो हस्ती, वो जात जो पैगंबर को, मोहम्मद रसूल सल्लम को हमारे लिए उसवा बनाए, और जब तज़किरा करे मोहम्मद रसूल सल्लम का तो उनके लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसवा बनाए, तो पीछे कुछ है। आइए वो ढूंढिए क्या है। पहली चीज, तारीख ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अबाउ अजदाद के ऊपर एक लंबी बात की है, मुझे उससे हट के जरा कुछ कहना है। जवानी है और बाप उस वक्त और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पेशा गॉड मेकर है। कुछ होते हैं किंग मेकर, जो बादशाह बनाते हैं, बड़ा नाम होता है उनका। आप पाकिस्तान में माशाल्लाह वाकिफ है कि सियासत की बागडोर किन के हाथ में होती है, हर शहर सल्यूट कर रहा होता है, मगर वो किंग मेकर नहीं, गॉड मेकर, कौम के इला बनाने वाली हस्ती। उस घर में आंख खोली है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बाप बड़े कमाल के उस वक्त के 12 महीने 12 बुत बनाते थे, 12 महीने 12 बुत। जैसे हमारे हर महीने में कोई ना कोई उसूल, ज़ाब्ते, रसूम, रिवाज, आदात मौजूद हैं, हर माह का बुत। और सेल लगती थी, कमाल लगती थी। वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये काम सीख लो, ये काम सीख लो। यहां बड़े सारे इंशाल्लाह आज मसले हल होंगे। अब्बा जी का कोई पेशा हो ना, वो भी 2 नंबरी का, गलत। हम हर चीज का फतवा पूछेंगे, लेकिन ये फतवा नहीं पूछेंगे हलाल है या हराम है। चल यार खानदानी काम है, जो किसी और नु दिता या असी अड्डा छड़िया तो कोई और आके बह जू, करी जाओ। जेड़ा मौलवी बोलन लगे विचू थोड़ा जिहा चंदा भेज दो, और वो बड़ी मोहब्बत से कहेगा फुलां भाई इतने की रसीद कटवा गया है। कहा अब्बा जान या अब्बाती, अब्बू जी बड़ा नाम है इस पेशे का, आप इनके गॉड में करो, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता, ना मैंने सीखना है ना मैंने करना है। खैर बाप ने धमकी लगाई, बात आगे चली। कहा अच्छा बनाना नहीं तो फिर तू इदा कर, डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, मैं बनाई जाना, तू अगे बेची आ, मार्केट च कड़ी आ, मार्केटिंग च आ जा। भाई आजकल तो मार्केट के अंदर जो लॉन्च है वो लॉन्च है, आपको पता है। गॉड मेकर का बेटा
ابھی میں نام کی بحث پہ آج وقت نہیں ہے، وگرنہ بتاتا کہ ابراہم ابراہم، ابو ریحام ابراہیم، یہ نام کیوں پڑے تھے؟ خیر، اٹھے اور کہنے لگے ابو جی میں پیشہ قربان کر دوں گا، مگر جو پیشہ توحید کے خلاف ہو میں جوتے کی نوک پہ رکھ کے قربانی دے دوں گا۔ سر جی آج ہمارے کتنے پیشے ہیں جو خلاف شریعت ہیں، خلاف توحید ہیں، اور پرنٹنگ پریس کے اوپر بیٹھ کے بڑا مطمئن ہو کے بندہ کہتا ہے جی حرج کی ہے۔ بھئی حرج تو کوئی نہیں ہے، حرج تو کسی چیز میں نہیں، آپ الٹا بھی لٹک جائے ہمیں کیا حرج ہے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ وقار کس میں ہے، دین کس میں ہے، معیار کس میں ہے۔ خیر بات چلی، کہا پیشہ بھی قربان، کہا چلو یار مارکیٹنگ کر لو۔ بھائیو مارکیٹ کرتے ہوئے جب اس جیب میں بھی پیسے آ جائیں تو اسی کہو گے ہے نہیں، اشارے کری جاتا ہے، ہم نے رکھی نہیں ہے یہ والی بعض وجوہات پہ۔ ادھر بھی ڈبل پاکٹ پیسے، سائیڈ پہ بھی دونوں پہ پیسے، شلوار والی پاکٹ میں بھی پیسے، ہاتھ کے اندر ماشاءاللہ بریف کیس، تھیلے، شاپر ڈبل ٹرپل، ان میں بھی پیسے۔ تو پھر بندے کا دل کرتا ہے اس طرح کی چیز کو قربان کرنے کا، اور جب مارکیٹ میں مہنگا ترین پیس بک رہا ہو، پتا کرو ذرا چنیوٹ میں آ کے کیا کیا نہیں بک رہا، پتا کرو ذرا چل کے ٹیکسلا میں ایک کنڈی لین چلے جاؤ تو پتا لگتا ہے جدو بوتو اسے پتھر دا لین تو ریٹ لگتا ہے، بت مت ریٹ لگاتے ہیں۔ سر جی بات آگے بڑھ گئی، باپ نے کہا خیر ہے، کیا کرے گا کل کو؟ نہ میرے والا کام اچھا لگ رہا ہے، میں بنا کے دوں، نہ مارکیٹنگ اچھی لگ رہی ہے۔ اوے چلو اتنا ہی دیکھ لے، ڈیلی تو لگتی ہے نا کوئی تھوڑا بہت اپنا حساب کتاب۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیشے کی بھی قربانی دے دی، ڈیلی کی بھی قربانی دے دی۔ مزدور لوگ ہفتہ ہفتہ خالی پھر لیں لیکن کتے نہ کتے ڈیلی لونی پہ جاتی ہے۔ پوری سیرت ابراہیمی میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ حالات سے مجبور ہو کے کبھی کوئی بت لے کے مارکیٹ میں عراق میں بابل میں کھڑے ہو گئے ہوں کہ لوگوں یہ بت لے لو، یہ پہلے مہینے کا ہے، یہ دوسرے کا ہے، یہ تیسرے کا ہے، 12 مہینے خیر کے مزے کے گزریں گے، یہ تمہاری رکھوالی کرے گا۔ ایسے نہیں ہوا۔ یہ جب 3 چیزیں قربان کر لی نا، ابو نے پہلے خود سمجھایا، ابا نا ویسے عادت ہے کہ خود بڑا مضبوط بن کے لوہے کی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھاتا ہے۔ تو ابا جی نے کہا پت گل سن، میرے گھر رہنا ہی تے کرنا پینا ہے، میرے گھر رہنا ہی تے کرنا پینا ہے، نہیں تو میں گھروں کٹ داں گا۔ سر جی شادی ہوئی ہو تازی تازی، ہاتھ میں کچھ ہو بھی نہ، تے ابا کہے پت مال بسترا چک تے ٹور۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہوں گے ابھی شاید اس کیفیت کو، یہ جن پہ بیتی ہے ان سے پتا کریں کتنا مشکل ہے۔ بیٹے نے کہا وہ گھر بھی قربان، جس گھر میں رہ کے مجھے شرک کے مجبور کیا جائے میں توحید کے لیے وہ گھر بھی قربان کر دوں گا۔ باپ نے یہ بھی کہا تھا صرف کروں نہیں کڈاں گا، وٹے مار مار پتھر مار مار رجم کر داں گا۔ سر جی ابا ایک جتی چکے نا دوجی واری بندہ کو سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ چھتر کھان نہیں مینوں جمیا تو ایویں جم کے بہ گئے ہیں۔ یا اباتی میں فرق نہیں آیا؟ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں وہ قائم رہا ہے، لیکن اللہ کا ادب اس میں بھی نہیں آیا۔ کہا ابو جان تیرے بیٹے کو تیری نظروں کے سامنے کر رجم قربان کر دوں گا۔ جب ڈٹ گئے 4 قربانیاں باپ نے گھر میں دیکھ لی، 5ویں کے لیے بھائیوں کو بلایا۔ یہ ابا جی کا اگلا ہتھیار ہوتا ہے، ہر گھر میں چلتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ وہ اپنے نا بھراواں نوں بھیج دیندا ہے، چاچے تائے جے سمجھاؤ یار میرے والا منڈا تو سر چکن لگ پیا، گوں ہاتھ بھی چکدا گو بولدا بھی ہے۔ پھر چچے اور تائے میں جو اچھا ہوتا ہے دبکے والا، ذرا تھوڑا جا ٹیکے والا، وہ ساددا اریا گل سن بلایا، ددیال آئے، ابراہیم کیا سن رہے ہیں یار، تھوڑا ہوش کر، اتنا عظیم پیشہ، اتنا بڑا کاروبار، مال ہی مال، دولت ہی دولت،
इज्जत ही इज्जत। तेरे बाप को किस निगाह से देखा जाता है, तुझे क्या इल्म? कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो वो काम करता है ਉਹਦੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ। कहा ददियाल भी कुर्बान। अगर तौहीद के खिलाफ बुलाए, नुक्ता जुमला एक बोल रहा हूं, अगर चोट लगने पे आए तो बड़ी गहरी चोट है, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। का पूरा ददियाल कुर्बान, अल्लाह की तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं, छठी कुर्बानी लगी है। प्यो ने सौहरियां दी खिदमात हासिल कर लियां ने, अगली चाल हुंदी है नानके, समझदे जे? वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहता नानके किनू किनू प्यारे ने, बहरहाल होते सब कोई है। आए आगे ननियाल बड़े, पुत की होया? कुछ नहीं यारो, रोला पिया है। कहा हां, मुझे कहते हैं वो काम कर जिससे मेरे रब ने रोका है, जो तौहीद के मुनाफी है। कहा फिर क्या करने जा रहे हो? हम रोकते हैं, मान जा। कहने लगे ददियाल छोड़ चुका, कुर्बान कर चुका, बाप कुर्बान कर चुका, घर की धमकी कुर्बान कर चुका, रजम करने की धमकियां सह चुका, पेशे को कुर्बान कर चुका, हां अपनी दिहाड़ी कुर्बान कर चुका, माल दौलत कुर्बान कर चुका। अब अगर तुम भी रास्ते का रोड़ा बनोगे, वो ननियाल नहीं चाहिए जो मुझे तौहीद के खिलाफ लेकर के आए। सर जी रुकिए, यहां पे वजीराबाद में बड़े सारे नानके मजबूरी बन जाते हैं, बच्चे इधर उधर से भाग भूग के फिर भी कहते हैं यार मैं गल ते तुहाडी मान लैंदा, कहंदे भी सही जे, पर नाना अबू जेड़े ने ना उन्हां दा मुंह मुलाया मारदा। ठीक हो गया, कुर्बान कर दिया। सर जी अगला पत्ता खेला है कौम ने, और वो पत्ता है यारों का। इतना मजबूत पत्ता है, इतना मजबूत कार्ड है। दादाजी ने सुबह उठाया, बच्चा नहीं उठा, बाप ने उठाया नहीं उठा, मां ने उठाया नहीं उठा, भाइयों ने उठाया नहीं उठा, बहनों ने उठाया ये नहीं उठा। बाहर एक मखसूस कोड वाला हारण वजया दरवाजे ते, मेन गेट ते, नाल पोली जी सीटी, छाला मारदा उठ के भज के गया। आ भी मलन की लोड़ नहीं, पता की लग्या कि यार आए ने। मुंह भी नहीं धोता तो कुछ नाश्ता भी नहीं किया, खादा पीता भी नहीं, छड़प्पा मारिया तो बैग ते नाल बह गया। सारे घर वाले कहते साडी की वैल्यू, साडे नालों ते यार ही चंगे रहे। यार जो मनवा लेते हैं ना, वो कोई रिश्तेदार नहीं मनवा सकता। अक्सर घरों की यही परेशानी आती है, मौलाना कोई वजीफा बता दें, बच्चा यारों में ज्यादा बैठने लग गया है, उन्हें तवज्जो और अहमियत ज्यादा देता है, हमारी परवाह ही नहीं है। घर घर की कहानी है। आए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, सर जी यहां रोकूंगा, बैठे हुए हैं, थोड़े अफसुर्दा हैं, तो कहने लगे इब्राहिम की होया है? पता तो सी, पर यारां दा अपना अंदाज। कहंदे छड्ड मेले ते चलीए, 2 मिनट खावांगे पीवांगे, इधर उधर दियां जिवें हुंदियां ने, दरिया ते रुकांगे, मौज मस्ती करांगे, तुम ही फ्रेश हो जाएगा। कहा मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, जाओ शाबाश। इन मेलों और ठेलों और दुनियावी रौनकों से हमें खुशियां नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। इन्नी सकीम, जैसे बीमार को मीठा मशरूब भी कड़वा लगता है, रब की तौहीद के पहरेदार को ये मेले, ये ठेले, ये सर्कसें ये अच्छी नहीं लगती। जाओ अपना काम करो। यारों की भी कुर्बानी देके रख दी। दे पाओगे? यार मैं कला एक पासे हाँ, मेरे 10 यार एक पासे ने, हुण मौलाना मैं की करा? ओ भाई उन 9 को तौहीद पे लेके आ, दावत दे, कुर्बानी कर, भले ऊंट की कर, कुर्बानी कर गाय की कर, कुर्बानी कर बकरे छतरे की कर, कुर्बानी कर जो मर्जी करनी है, लेकिन उस कुर्बानी से पहले आज उन यारों के याराने और दोस्ताने को भी देख।
जो तुझे गुमराही की तरफ, जलालत की तरफ, शिरक की तरफ, रसूम की तरफ, रिवाज की तरफ लेकर के माइल हो रहे हैं, कायल हो रहे हैं, और तू घायल हो रहा है, ये भी कोई कुर्बानी देगा? और याराने सिर्फ जवानों के नहीं होते, बाबियां दे भी बड़े जे। मंजा ग्रुप, थड़ा ग्रुप, ताश ग्रुप। कल मैं एक इलाके च परसों गया ते उथे मलंगी बूटी ग्रुप, मलंगी बूटी तुहाडे भी लागे लागे हुंदी है थोड़ी बहुत पंग जी, भंगी ग्रुप, ये फुला ग्रुप, बस बैठे, वक्त गुजर रहा है। आइए, एक और कुर्बानी होने लगी है। कौम ने अपने उस दौर के जो नजरियात थे वो ला करके मुनाजराना हैसियत में पेश किए। कहा इब्राहिम हर वेले गुस्से च नहीं रहीदा, थोड़ा जिहा सोच। अज कोई सानू कहे लाइट जू चली जावे ते छत ते सोलर पैनल लगा होवे ते यार पूरी दुनिया नू सूरज धुप भी दवे, गर्मी भी दवे, लाइट भी दवे, पावर भी दवे, एसी भी चलावे, ठंड भी पवे, ट्यूबवेल भी चलन, पानी भी चले, यार भला इन्नियां तुहाडे नाल मेहरबानियां कोई होर कर सकदा है? ते अगे कहे यार अल्लाह होएगा पर सानू हर वेले गर्मी च वेखो की हाल है, ते सूरज इन्ना कुछ देन दिया ते फिर भी अल्लाह नहीं। रात को हसीन चांद बनाए, सितारे टिमटमाए, क्या ये रब नहीं है, इलाह नहीं है? तेरा बाप जिनको घड़ के करता है, चलो उनसे तो तेरी नाराजगी हुई, ये तो आल ओवर द वर्ल्ड पड़े हैं। आ देख, कहा ठीक है चलते हैं, सितारे देखे, टिमटमाते रहे, बुझ गए। कुर्बान जाऊं कुर्बान, कुरान तेरी अदा पे। आए सितारों को देखा, क्या बोला जब बुझे ना? कहा याद रखो इन सितारों से क्या पूछूं, कब दिन मेरे फिरते हैं, ये तो बेचारे खुद हैं भिखारी, डेरे डेरे फिरते हैं। अब कहीं, कल कहीं, रात कहीं, अगले घंटे और कहीं। चांद डूबा कहा कुर्बान, सूरज गरूब हुआ कहा कुर्बान, कहा तुम्हारा ये इल्म नुजूम भी कुर्बान। कुर्बानियां दे के रख दूं, ये सारे मखलूक हैं मेरे रब की, जो इनको पैदा करने वाला है। तुम्हारा सफर चांद सितारों पे रुक गया, मेरा सफर इनके खालिक और मालिक और अर्श बरी के जो है वो इलाह और माबूद तलक है, मैं तुम्हें उनकी दावत देता हूं। बड़े सारे लोग आएंगे। पता है कुर्बानी से पहले अगर ये नुक्ता समझ आ गया तो आपका आज कैसे गुजरेगा, आपका कल कैसे गुजरेगा, आपका अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, आपका महीना कैसे गुजरेगा, आपका साल कैसे गुजरेगा, आपकी कुंडली कैसे गुजरेगी, आपकी ये मंगनी कैसी रहेगी, आपकी ये शादी कैसे रहेगी, आपका ये होने वाला मंगेतर कैसा रहेगा, आपकी मंगेतर कैसी रहेगी, तेरे हाथ की लकीरें क्या बोलती हैं, तेरी कुंडली का कॉम्बिनेशन करते हैं। ये अगर कुर्बानी करनी है तो पहले इन रसूम और रिवाज और खराफात की कुर्बानी दे और बोल। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास आए कि सर जी कोई नागी दे छो, सारे घर लड़ाई बड़ी रही है। मैं ही पाया सी तो मैं उतार के दे देता। मैं क्या सरकार लवो एदा खास वसफ जी। मैं क्या जी पहली तो गल ये दोनों पासों नजर आता है। जैनवन पत्थर है हजरे अबीयत से जन्नत च उतरिया सी। हजरे असवद बनन तो पहले ये इदां दा सी, बड़ा महंगा करके लभ्या। एदी खूबी ये वे नजरे बद पड़े तो रिफ्लेक्ट कर देता है, मोड़ देता है। कोई हसद करे तो मोड़ देता है, कोई बुरी सोच रखे तो मोड़ देता है, कोई गाली निकालने लगे तो मोड़ देता है, कोई तलाक खुले की सोचे तो मोड़ देता है। कहता सर जी ਇਹਦਾ रेट की लगेगा? मैं क्या तू मुफ्त लै जा। कहता एडा कीमती पत्थर ते मुफ्त, लोग तो बहुत पैसा लेंदे ने। मैं क्या हाँ जी यार मैं इस दफा जो घर बनवाया सी ना ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ वाइट पत्थर लवाया सी, थोड़ा जिहा बच गया, मैं कट के ਇਹਦੇ ਚ मढ़ा लिया। वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। ये तुम्हारे बुत, ये तुम्हारे चांद सितारे, ये हाथों की लकीरें, इन पे ना जा ए मुस्लिम।
नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकता। इनू तो पासा परतन लिए भी मैनू आप कहना पैना इला परत यार, ये मेरे हालात बदलेगा। कहन लगा जी ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਚਾਕੀ ਲਈ। मैं कहा यार ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਈ, बड़े बड़े चौधरियां ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੀਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? मैं कहा जी वो 5 ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, 5G 5G। जब 2G आया था 3G एक बोतल भी थी ना, आप पीते रहे, पिलाते रहे आपको तेज फास्ट, फिर 4G, अब 5G 5G ऐसे जे जिन्हां दी ताकत चौधरी बनाउंदी जे कुर्बानी तो पहले कुर्बानी, 10 बकरे भी कुर्बानी कर ले। अगर घर में संभालने वाले 5 जीओं में से कोई एक जी नहीं, वैसे मैं इनको 5Bs कहता हूं, MBs का दौर है, लेकिन फिर भी पंजाबी में चले ले 5G। पहली जी अम्मी जी, जिस घर की मां जी जिंदा दिल शेर दिल अपने शौहर का साथ देने वाली है, वो कब्रों में भी चला जाए फिर भी उसकी पगड़ी का शिमला ऊंचा रहता है, नाम जिंदा रहता है। हम बखर में गए, कॉन्फ्रेंस थी, रात को मेरा आखिरी खिताब 2 बजे, सारे कहन लगे जी मां जी नूं मिल के जाना। मैं कहा सर माजरत मेरे को काम नहीं होता, मैं क्लास भी लैनी है। कहते जी ये नहीं हो सकता, जाना पैना। घर में गया, पता चला कि अम्मा जी की उम्र 65 साल है और अपनी जवानी में जितनी भी कॉन्फ्रेंसें होती थी 3 दिन फ्रेश रोटी सालन मां जी का पूरा ग्रुप चलाता था, किसी भी मेहमान को रोटी ठंडी नहीं दी जाती थी। सर जी ये शोहरत जो आज मैं वजीराबाद में बैठ के उस घर की कर रहा हूं, किसकी वजह से है? ये पगड़ी का शिमला ऊंचा। पहली जी मां जी 65 साल की उम्र में भी कॉन्फ्रेंस। कहती पुत जेड़ा तेनों आखिरी खाना गया ठंडा तो नहीं सी? मैं क्या नहीं मां जी। कहते मैं हथी बना के भेजे। सर जी आज माशाल्लाह सारा कुछ मुयस्सर, सुई गैस भी है, सिलेंडर भी है, ओवन भी आ गए हैं, तो फिर भी बच्चे नूं फीडर ठंडा ही पियाया जावे, तो फिर इस बच्चे ने कल चौधरी की बनना है? पहली जी अम्मा जी, दूसरी जी बहन जी। बहनें भाइयों के सर के शिमले ऊंचे कर देती हैं। भाई के मेहमान आए हैं, जी भाजी जी वीरे तुसी उन्हां च बवो बस आया। तीसरी जी बेटी जी, चौथी बीवी जी, इनू भी जी आखीदा है? हां जी इनू ही तो जी क्या, इन्हें बाद चम्मा जी बनना है। और आखिरी जी बहू जी। बहू जी जहां जहां ये 5 हैं या इनमें से कोई एक खड़ा है, आज भी वहां चुदराहट कायम है, वहां डेरे चलते हैं। तो जिथे पंजे दियां पंजे माशाल्लाह सुतियां होण, तो कहण रोटी तंदूरों ले आओ। सुनिया जे ना फिर की हुंदा है। मैं सिर्फ थोड़ी सी गर्मी कम करने के लिए कह रहा हूं, वगरना ये मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है। तंदूर ते जाके काली पाइयो, जल्दी करो रोटी दे, मिंट लाए। कहंदा चौधरी जी एडी तेरी फुरदी हुंदी ना, तो फिर इत्थे तंदूर ते ना ओनू घर पकवा लेनू। हौसला रख जरा, मोट ना। सबक क्या मिला? कुर्बानियां। एक और कुर्बानी आ गई। कहन लगे जेड़े तेरे अब्बा जी बुत बनाउंदे ने ना, बड़े वड्डे वड्डे इलाह ने, इन्हां नाल पंगा ना लई, ये लक तोड़ देंदे, लत भन देंदे, ये वो कर देते हैं, वो कर देते हैं। कहने लगे अच्छा ठीक है। ये कह के जदों यार मेले ते गए ना, तो कहंदे तुसी वापस आओ जरा, मैनू वापसी ते मिले जे। वापसी पे आके देखा चांद भी हार चुका, सूरज भी हार चुका, सितारा भी हार चुका, कुर्बान किए जा चुके। कौम के नजरियों की कुर्बानी दे दी, माबूदों की भी कुर्बानी हो गई है। लिया है कुल्हाड़ा, टुकड़े टुकड़े करके
बड़े के कंधे पर रख के आए और कहने लगे हाय तुहाडा की हो गया ते कौन ते किदां ते एक ही कीती तुहाडे नाल। अंदरों तो कहते होने ने तुसी अपने आप को नहीं बचा सके तो सानू की बचाना है, पर ऊपर से मुशरक बड़ा मजबूत होता है। कुर्बानी उसे सिखाती है कि कुर्बानी क्या है। कुर्बानी से पहले कुर्बानी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पंच लगाया, ओए मेरे से क्यों पूछते हो, ओ जिदे मोढे ते घोड़ा पिया उन्होंने पूछो। तो फिर अंदरों बोले सी इब्राहिम तेनू पता है ये बेचारे कूंदे कुसकदे नहीं, ये बोलते नहीं, इन्हों की पता, ये तो रख रखाव लिए असी रखे ने, चल यार तू ही दस दे। हजरात फौरी तौर पर रिपोर्टिंग हुई, मार्केट में लगी और माशाल्लाह एजेंसियां हरकत में आई, बात फौज सिपा तक पहुंची, बात नमरूद तक पहुंची, वार्निंग पे वार्निंग दी गई। पुलिस आई तो कहा कुर्बान, नमरूदी फौज आई तो कहा कुर्बान, जो करना है कर डालो। बादशाह थोड़ा जिहा सियाना सी, बादशाह वैसे भी सियाना ही होंगे ना, हर सियाने भाई नूं आपां कह नहीं देंदे तुसीं भी माशाल्लाह बादशाह ही हो। सियाना सी, कहण लगा यार उन्होंने मेरे को सदो मैं समझाऊना। आए, हाँ इब्राहिम तेरे बारे में ये रिपोर्ट आई है। कहा जी किसको इला मनवाना चाहता है? कहा अल्लाह वादा उला शरीक। कहा क्या करता है, खूबी क्या है? कहा खूबी ये है कि वो जिंदा को मार देता है, मरे हुए को जिंदगी बख्श देता है। कहने लगा एक ही बाकी गल तुसी सुनी है, एक नूं सद्या ते उन्होंने मारता जिदा गुनाह कोई नहीं सी, दूजे नूं जेलों उम्र कैद चढ़ाई ते चल अल्लाह दी सुपुर्द। मौज लग गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई ये माठा तिरा के ये हाले उच्चे पानी च तरन डिया है, कोशिश करन डिया मैनू डेगण दी, इनू जरा थोड़े जे अगले पानी च खड़ो, गहरे पानी च। पुरानी कुश्तियां होती थी गहरे पानी में, गोते दिए जाते थे, कौन ज्यादा देर सहता है। ले जाया गया, कहा आ इधर आ, बोल मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकाले मगरब में गुरूब कर दे। अगर तेरे में ताकत है निकाल सूरज को मगरब से और गुरूब कर मशरक में, फबोहित अल्लाज़ी कफर। सर ये मुनाजरा ऐसे नहीं था, इससे पहले एक पेशकश हुई थी। कहा तू हमारे गॉड मेकर का बेटा है, वजीर मजहबी उमूर बना देंगे। वजीर मजहबी मुल्तान के एक बाबा जी, उन बाबा जी के एक मुरीद वजीर आजम बन गए। उन्होंने अपने बाबा जी के बेटे को वजीर मजहबी उमूर लगाया था कि नहीं? वो जो हज मैटर बने थे, वो गाड़ियां, वो ऊपर बत्तियां, वो माशाल्लाह झंडे, वो प्रोटोकॉल आगे पीछे डाले, किसको अच्छा नहीं लगता? कहा इब्राहिम वजीर मजहबी उमूर इराक का, कहा जूते की नोक पे ऐसी वजारत कुर्बान कर दूंगा जो रब की तौहीद के खिलाफ आए। कहा बैठ मुनाजरा कर, टेबल टाक कर। टेबल टाक हुई, जब देखा कि बात नहीं बनी, कहा इसको जला दो, हर रिकू। बाकी वाकया आपने सुना हुआ है, मुफस्सिरीन जो रंग भरते हैं, कमाल भरते हैं, खिताबत उसमें मजीद जलाल ले आती है। अग्गा बाल लिया ते हुण सुटना किदां पता ना लगे। मशीन भी कोल कोई नहीं, मशीनरी भी जवाब दे गई। फौजियां नूं कहण तुसीं छाडो, कहंदे जी साडा की कसूर है, साडे भी एवें नाल तिक्के कबाब बनाओगे, इहदा ते है। अग इन्नी बाल ली जे पागलां नूं, पहले हिसाब नाल इहनूं उत्थे रख दे, लकड़ां बाहर जुड़दे, फिर अग लाउंदे हो तुसीं, पहले अग ला के बह गए हो। बड़ी बड़ी दास्तानें लिखी हैं। तंग आण के कहण लगे इब्राहिम तू अपे ही टुर जा, चल। कहण लगे मैनू की लोड़ पई है, छड्ड आओ। अल्लाह अकबर। कहानियां अपनी जगह, जान को कुर्बान करने का आसान काम नहीं है, ये रास्ते आसान नहीं है। कुर्बानी दे दी, कहा मुझे अगर मार के तुम राजी हो तो चलो कर लो, लेकिन तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं। आग जलाई गई, तैयार कर दिया गया, मंजनीक बनाई गई, फेंक दिया गया। आसमान से जिसने आग में जलाने की तासीर रखी, आवाज दे दी, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामा। मेहमान आ रहा है, ज्यादा भी टेंपरेचर थले ना लै जाओ कि कंबल लेना पै जाए। एसियां च लेंदे हो ना, ते इन्ना गर्म भी नहीं कि पसीना आ जाए यार नूं। दो में नहीं बहन बहन सलामा। सर जी आग ने नहीं जलाया, ये एक अलग बात है, अल्लाह का फैसला। छुरी ने नहीं काटा, अलग बात है, रब ने काट खत्म कर दी। जिस समंदर ने
फिरौन को डबोया था, उसने मूसा को नहीं डबोया। ऊपर कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है। आइए सुनिए, कुर्बानी से पहले ये कुर्बानी दी जा रही है। खैर, जब नहीं जला, आखिरी फैसला हुआ, फौज भी मिल गई, सिपाह भी मिल गई, ददियाल भी मिल गए, ननियाल भी मिल गए, यार भी मिल गए, आस्ताने भी मिल गए, आशियाने भी मिल गए, बुजुर्गों के जो है वो उस वक्त के सज्जादा नशीन भी मिल गए। कहा सारे मिलो, बाप को भी बुलाओ, निकालो इसको, फारिग करो ये इस मुल्क में रह के। सर जी, शाला दुनिया च कोई कल्ला ना होवे। कल्ला अगर हो सकता है तो सिर्फ एक वहाबी हो सकता है। मैंने पूरी तारीख में ढूंढा है, जुमले पे जरा गौर करना, ढूंढना। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अकेला है। तारीख में वो दिन आया जब जिंदगी भर की दावत पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक भी फर्द नहीं मिला। सूरह मुम्तहाना में जो है वल्लज़ीना माअहू, ये अगला मामला है। एक भी फर्द नहीं। दिल पे क्या गुजरी होगी। कह देना बड़ा सौखा है। गए हो वो किते पिकनिक ते पहाड़ां वाले कहण आ मुंडा जेड़ा इत्थे छड़ जा, ये नहीं असी देना। उम्र 86 साल के लगभग हो। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस वक्त 80 थी। अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और दुनिया ताने दे रही है, ताने दे रही है। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। इब्राहिम तो साडे बुजुर्गों ने नहीं ना मन्निया, उन्हां सूह बन दी है, नहीं ना होने देंदे कुड़ी मुंडा लई फिर बुढ़ी नूं। तारीख ये भी लिखती है कि दुनिया की सबसे एक नंबर हुस्नो जमाल में अगर कोई उस वक्त खातून थी तो सैयदा सारा थी और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आलिया थी। खैर, निकलने लगे, साथ चल दी, शाम पहुंचे, फिलिस्तीन क्रॉस किया, समंदर की हुदूद आई, मिस्र में दाखिल हुए। फिरौन वक्त के दिल में जो एक मशहूर वाकया बात आई, और जो उस वक्त की हसीनो जमील मिस्रियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, ये शादीशुदा होके भी। फिरौन वक्त का दिल आया। जब हकीकत का पता चला, किस्सा मुख्तसर, उन्होंने अपनी बेटी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दी। जैसे मारिया किब्तिया रसूल सल्लम को वहां के लोगों की आदत थी कि जिसको वो मान जाते थे उसको अपनी बेटी या कोई जो है वो इज्जत आबरू गिफ्ट कर देते थे, और ये हार मानना होता था। खैर, तारीख जो लिखती है यहां सुनने वाला है। आपके साथ सबसे ज्यादा बनी इसराइल की दुश्मनी है, और आज के क्रिश्चियंस और ईसाई कहते हैं इस्माइल अफजल नहीं है, इसहाक अफजल हैं, क्योंकि जनाबे इसहाक सैयदा सारा से हैं, और सारा जो थी वो असली बीवी थी जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और जो उन्हें हाजिरा मिली थी ये लौंडी की हैसियत से मिली थी, इसलिए इस्माइल लौंडी के बेटे हैं। उनका वो मुकाम और मर्तबा नहीं है जो इसहाक अलैहिस्सलाम का है। लेकिन हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको दिया, उन्होंने निकाह करा, अल्लाह ने पहले उनसे बेटे से नवाजा, और वो इंसानी क्लैश आना था कि बीवी ने कहा आसमान ने आजमाना था। अच्छा, इन्ने साल मांगते रहे, नहीं लभ्या, एक कल आई ते अल्लाह ने मुंडा दे दिता है, चल इनू उत्थे छड़ के आ जिथे नामो निशान ना हो, नामो निशान ना। सर जी, इत्थे जरा जेड़े दो जियां दे विच फसे हो, दो करा बैठे हो, ते फिर फसे हो ना दसन जोगे ना छड्डण जोगे, सोचिए छोड़ना। कहा छोड़ के आओ, मिस्र से निकले, नक्शे पे देखना, लुबनान में आए, फिलिस्तीन में आए, चलो दूसरा रूट ले लें, उर्दन से आए, सऊदीया में दाखिल हुए, मक्का पहुंचे, और पूरे मक्के में एक भी दरख्त नहीं था, बेआबो गयाबादी, कोई कुआं नहीं है, कोई नलका नहीं है, पानी की जगह नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई अता पता नहीं है दाएं बाएं का, हालात इस कदर, कोई जर्नल स्टोर नहीं कि कुछ जरूरियात जिंदगी सौदा सलफ ले लेंगे या दूध ले लेंगे या पानी ले लेंगे। जब वहां पहुंचे, कहा इब्राहिम, बुढ़ापे में मिला जी, अल्लाह जी, कहा इन दोनों को छोड़ो और वापस हो जाओ। सर जी, बीवी की कुर्बानी
لوگ باپ قربان کر دیتے ہیں, وراثتی گھر قربان کر دیتے ہیں, ماں باپ رشتہ دار قربان کر دیتے ہیں, لیکن جیڑی بیوی اینو نہیں, اینو لے کے ڈوڑ مرلے دے مکان چ بھاویں وزیرآباد دے کسے گوٹھ چ کیوں نہ لبے اوتھے آ جانا, لیکن اس کو نہیں چھوڑنا. ابا پھر بھی ابا ہے, لیکن بیوی بھی چھوڑ دی, چھوٹا بچہ بھی چھوڑا. یہاں میں مفسرین کی آراء کو نہیں لیتا, کیا کیا ہوا, کیا کیا باتیں ہوئی, قرآن نے جتنے اسلوب میں چلایا وہی چلیے. کتے لاری اڈے تے اللہ نہ کرے بچہ تے بیوی گم ہو جان, پتہ چل جائے گا, سامنے آنکھوں کی چھوڑ کے جا رہے ہیں, بڑھاپے میں جا رہے ہیں, پہنچتے ہیں, اللہ بیٹا اسحاق دے دیتا ہے, عمر گزرتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ جناب اسماعیل بڑے ہو گئے اتنے سال کے, باقیل ابھی وہ زمزم کے معاملے, ابھی وہ صفا مروا کی دوڑ کے معاملے سارے رکھیے اپنی جگہ پر. قربان ماں نے کیا کیا کیا, آگے پیغمبر نے کیا کیا کیا, رب نے بدلے میں زمزم کیسے دیا, لیکن جب آئے تھوڑے دن ہی رہنے. کتنے لکھے مفسرین نے, قرآن کہتا ہے نہیں, آندے کہندے پتر خواب ویکھیا میں تینوں ذبح کر رہے ہیں, اور نبی کا خواب, پیغمبر کا خواب, اللہ اکبر. قربانی سے پہلے یہ قربانی, مجھے پچھلے سال ایک دوست نے قربانی کے بکرے کی تصویر واٹس ایپ کر دی, میں دیکھ نہیں سکا تو کالوں پہ کالے ہیں, میں نے فون اٹھایا, کہندے واٹس ایپ دیکھو ذرا, میں نے دیکھا تو بکرا تھا, کان تھوڑا سا کٹا ہوا تھا. اے حساب سے کہندا جی یہ دسیو قربانی تے لگدا ہے, میں کیا اپنی تصویر بھیج, کی مطلب اپنی کیوں, میں کیا پتہ لگے نا لین کون ڈیا ہے تے اے دے بارے پوچھن کون ڈیا ہے. غصہ کر گیا, فیصلہ آبادی تھا, سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تصویر بھیجی تو میں کیا تیرے لیے جداں دا مرضی لے لا, لولا لے لا, لنگڑا لے لا, کانا لے لا, انا لینا لگ جانا. کہندا جی وہ کی قربانی دی شرطاں نے, میں کیا کلیاں جانور چی شرطاں نے, جنہیں لینیاں او دیاں کوئی شرطاں نہیں. او دا کان کٹیا ہے تے پتہ نہیں لگو کہ نہیں, پوری دی پوری داڑھی کٹی ہے, پریشانی کوئی نہیں. سر جی سنیے, میرے فرسٹ کزن کا ایمبیسی میں انعام نکلا ہے, ایمبیسی سگریٹ, پرانا پنا ملیا, پیندا نہیں سی, فل کیتا بھیجیا, انعام نکل آیا. کسی نے کیا ہے حرام ہے, فتوا لین لی بہاولپور چلا گیا, پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس, وہ ملے نہیں, بیٹا عبد الرحمان مکی, جوانی تھی, اے ٹکر پہ, کہنے لگے جی ایک فتوا لین آیا, سنیا جی فتوا, جی کیا فتوا ہے, کہندے جی ایدہ میرا انعام نکلیا ہے, جائز ہے کہ نہیں. کہندے پت نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے. سوچ کے نا جھٹ کو مسیتے جو بیٹھا سی, ہن جھوٹ بھی نہیں چلدا, کہندے کو دا مانا نہیں, آکھے پت تیرے لیے جائز ہے, جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دے لیے, وہ جس نے رب کو یہاں نہیں مانا وہ وہاں کیا مانے گا. جس نے پہلی قربانیاں نہیں کی اس کے لیے قربانیوں کی شرطوں کے چکر وکر سائڈ پہ رکھو, تو عید نہیں ہے تو پھر کوئی عمل بھی نہیں ہے. پہلی شرط ہے, پہلی شرط. خیر واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, اگے مفسرین دے طریقے نے اپنی جگہ. بہرحال ذبح کرنے کے لیے جب تیار ہوئے سر جی, پھر اللہ نے بھیجا ہے مینڈا, چھترا, اور اسے کہا ہے ذبح عظیم. یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی, پیچھے ایک لائن لگی ہوئی تھی قربانیوں کی, اور پھر رب نے آواز دی, ابراہیم بس کر یار, بڑا آزما لیا تینوں, بس کر, اور نہیں چاہیے. چھترا قربان ہوا, اسی پولا تے چوندا لے لیا, پھر چلو بکری, چھتری, وچھا, گاں, ویڑا, اونٹ. لیکن جیڑیاں پہلیاں قربانیاں سی, نہ پتران دی قربانی دے سکے, باپ نے بیٹوں کے غلط رویوں پہ قربانی دی, نہیں ہوا. ایک واقعہ سی کڈ لیا پتران نو دسن لی. اوے ابراہیم علیہ السلام آئے تے انہوں نے اپنے پوت نو کیا چگاٹ بدل, دہلیز بدل. یہ سنیا جے پیر جی, مینوں یہ نہیں جے لبیا کہ جے تانوں لبے کہ کوئی صحیح, تو مینوں قرآن نے ویسے شاید انہوں کسے پاسے لایا نہیں, آئے نے بڑی دفعہ, لیکن چگاٹ بدل میری سمجھ سے گل نہیں آئی. جہاں بیویوں کا مسئلہ ہے قرآن ذکر کر دیتا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی میں پرابلم تھی, ذکر کر دی,
लूत अलैहिस्सलाम की बीवी में मसला था, रब ने मिसाल बना दिया। जिन अंबिया के घर में बिस्तर के ऊपर इससे बड़ा बिस्तर और ओहदा कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो वहां की भी वफादार नहीं, रब ने कुरान बना के इबरत का निशान बना डाला। और जो वफादार हैं, रब ने कयामत तक के लिए गवाहियां उतार दी हैं। मत कोई समझे कि पैगंबर के घर में भी ऐसा हो सकता है। अगर हो तो रब बता देता है। अगर रब सफाई दे या कुरान खामोश हो तो हमें कोई हक नहीं है कि हम पैगंबर के घर के ऊपर उंगली उठाएं। पता चला, इतनी कुर्बानियां देके अब करना है जानवर ज़बा। कुर्बानी ये बाद की है, वो पहले है फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। ये है तेरे रब के लिए सलाह। कौन सी सलाह? सलवन से वसल ना हो। सलाह कैसी? आज तक नमाजें पढ़ी, रब से मिला ना सकी। रब से मिले होते, नमाज ने 4 हालतें दी हैं। खड़े होते हुए, रुकू की हालत में आधा झुक के, सजदे में पूरा झुक के, तशahhud में धरना दे के तूने तौहीद का ऐलान करना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बकरे ने भी बताया, खड़ा हुआ है तो रब के लिए, तूने दोनों टांगे पकड़ के गिराने लगा तो भी रब के लिए, अकड़ा है तो भी उसी के लिए, झुका है गिरा है तो भी उसी के लिए, छुरी चल गई है तो याद रख, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। ये तकवा है और तकवा विकाया है जो रब के कहने पे, आर्डर पे अमल कर और नहीं से रुकवाए, जहन्नम से बचाए, जन्नत में लेकर के जाए। और वो एक तौहीद है, दूसरी सुन्नत है। तौहीद और सुन्नत का जेवर है तो कुर्बानी खरीदिए। अगर आज दुनिया में ये, इसलिए मेरे दोस्तों, ईद से पहले, कुर्बानी से पहले आज का ये टॉपिक, इसे जिंदगी में पल्ले बांधिए, अपनी डायरी में सरे फर्क लिखिए, हालाते जिंदगी में लेकर के आइए, दोस्त अहबाब यारों को बताइए और कहिए कि ये वो कुर्बानियां हैं जिसे सीरत इब्राहिम कहते हैं। सीरत इब्राहिमी कहना बड़ा आसान है कि आज भी आग जो है वो फिर एक गुलिस्तान का अंदाज पैदा कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि पहले वो वफा तो निभा, वो मेयार तो लेकर के आ। आइए, जैसे सारे मसलक मिलकर कुर्बानी पे मुत्तफिक हैं, ऐसे हम सब मिलकर तौहीद पे, अल्लाह की वहदानियत पे, रब की किबरियाई पे और पैगंबर की सुन्नत के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। इंशाअल्लाह ये कुर्बानियां दुनिया में भी हमारे हक में बन जाएंगी और आखिरत में भी हमारा हक होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको उस कुर्बानी को समझने की तौफीक दे जो इस कुर्बानी से पहले है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। एक सवाल किसी मेरे ही दरस से है कि आपके दरस में एक बात सुनी थी कि अल्लाह का नाम सत्तार नहीं है। मैंने जितनी भी खुर्दबीनें दूरबीनें होती हैं वो लगा के कुतुब फिक में, कुतुब अहदीस में, कुतुब तफसीर में ढूंढा है। लोगों के यहाँ ये अल्लाह का नाम मशहूर है, पुकारा जाता है, विरद है, लेकिन ऐसे नहीं है। हदीस में इन्नल्लाह सित्तीरुन हय्युन, तुम्हारा रब पर्दे डालने वाला भी है और बड़ा शर्माने वाला है। हय्युन नहीं है, अक्सर लोगों ने इसे हय्युन पढ़ाया। हय्युन, तेरे रब को शर्म आती है कि बंदा रब के सामने हाथ उठाए और अल्लाह हाथ खाली मोड़ दे। तो अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह के नाम तौकीफी है, तौकीफी जिन्हें कोई बंदा नहीं बना सकता, अल्लाह ने अपने लिए खुद चुने हैं और वो अस्माए हुस्न है, उनमें जो हुस्न है उसी के साथ पुकारना है। तो फिर या सित्तीर कह के आगे आप कहें अल्लाह मेरे पर्दे रख तो ठीक है। क्या कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना जरूरी है? बाजी इस कुर्बानी तो पहले को कुर्बानी आदत से इबादत की तरफ बदलने लगा हूं। किसी जमाने में ये जरूरी नहीं था, मगर आज बहुत जरूरी है कि हिस्से 3 करो तो अगे और भी एक कम करो। जिन्होंने कुर्बानी करनी है जरा दिल पे हाथ रख के ये कुर्बानी दे, इस दफा वादा करें अल्लाह से। मैं लाहौर में गया तो वहां मुनाजरा लगा हुआ था, कई महीनों से चल रहा था वहाबियों और सुन्नियों के दरमियान। वो जड़ी हलाल है कि मकरूह है। वहाबी उलमा कहते थे कि हलाल है, वो सुन्नी
आलिम बदले में जवाब में दलीलें लाते थे कि मकरूह है। मैं गया, मेरा भी दरस था मगरब के बाद, मैं जरा टाइम पे पहुंच गया, जैसे आज आ गया था अल्लाह की तौफीक से। मैं कहा जी सुनाओ, कहते जी एक मौजू है, तुसी ओजड़ी ते दसना है। मैं क्या ओजड़ी, एडी दूरों सफर करके एक ओजड़ी 2 मिनट की गल है। कहते जी असी 3 महीने तो फसे हैं, फलानी मसीत का मौलवी साडे नाल बैसिया है। मैं ना चुप करके उस मस्जिद में चला गया, लबो लहजे से पता लगा सरैकी है। मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी सी तफसील में किसी वजह से दे रहा हूं। मैं गया, मैंने मिला, सोना क्या हाल है, ठीक हो, किवें, किहड़े इलाके दे के, मुजफ्फरगढ़ दा। मुजफ्फरगढ़ जिले के आगे एक एरिया था, पीछे अब ठो लमजा दिन, ये भी इलाका है एक बहावलपुर वाली साइड, रहीम यार खान चन्नीगढ़ से आ गया। मैं कि इतना आके 13 साल थी गिन। मैं कि मामला ठीक पे चलते ना कि बिया था यका ठीक है कि मैं वहां बेदा मौलवी मेरे चूने पै गए, चूने पै गए भाई, उन्हें मेरे वाल फड़े ने पुटन ने। हुआ क्या है, आके मैं ओझड़ी को मकरू आ बैठा, वो आधे हलाल है, हुन सारी आपस में लगी पी है, हार कौन मने। मैंने कहा वजह क्या है, कहते मौलाना सच बताऊं 13 साल हो गए हैं। सरैकी बोली तो आपको समझ नहीं आएगी, 13 साल हो गए हैं। जब भी मुझे किसी घर से गोश्त है अपनी कुर्बानी देने के काबिल नहीं, साडे लिए यहां आ हुंदी है नरगट जी नाल फेफड़े ते सब तो ज्यादा मिकदार च छिछड़े ते उस तो वध ओजड़ी ते मेरे ते बच्चे नहीं घर पक्षी, ये छिछड़े सादे किते लेने के काबिल नहीं, आता कुछ है नहीं। भेजो माशाअल्लाह उन्हें कुर्बानी भेजी, इस वाक़े नूं 13 साल होने वाले ने, हुण नहीं किते उत्थे ओजड़ी का मसला बनिया। सर जी ये सवाल 3 हिस्सों का पता क्यों होंदा है, जिदों लोग शुरू च आउंदे ने ते आपां कह दिंदे आ नहीं हाले कीती नहीं, ठहर के आया जे, जिदों ठहर के आउंदे ने कहंदे असीं वंड दित्ती। हमारे यहां तो ऐसे होता है, आपका पता नहीं, तुसीं फ्रिजां ले हो, वड्डे वड्डे तुहाडे करीब माशाअल्लाह हालात ने इदां दे, ओ जी हुण असीं वंड दित्ती है। सर जी किसी मालवी, किसी गरीब, किसी मिस्कीन, किसी यतीम, मैंने एक बच्चे को पूछा पुत कदी कलेजी खाधी, कहंदा जी अल्लाह दी कसम असीं कदी गोश्त नहीं दा मुंह नहीं वेख्या, कलेजी कितों खानी है। सर जी मेरा पिछला जुमा इस मौजू पे था, इस साल एक कुर्बानी दो, आदत को बदलो, इबादत में बदलो। जिन्ने घर दे विच दिल ते कलेजी निकलनी है ना, इनू घर पका के चखनी नहीं, कोई 2-4 गरीब हमसायां दे घर 4 प्लेटां भेज देनियां, हो जाएगा सर। सर चेंज आवे ना, इबादत का अपना मजा है, आदत तो है, जल्दी जल्दी करके भेजो, असी मसाला बनाया है ते माशाअल्लाह फिर की मजाल जे एक बोटी भी किसी होर नूं टुर जाए। करें ये चीज, अगर नहीं दिल मानता, वैसे हिस्से जरूरी नहीं है, कुरान की ऐसे इस्तिंबात है, बहरहाल कर लेने बेहतर है, ताकि असी फिर कोई ये ना समझिए कि सारा ही अपना है। यौम अरफा हज वाला दिन बनेगा या कोई 9 ज़िलहज्जा, ये मसला तुहाडे इलाके च बहुत ज्यादा चलता, मुकामी मुफ्ती हजरात तो पूछो जो मुनासिब समझण। मेरा जाती मौकफ है कि जितनियां भी इबादात ने ये तारीख नाल ने, उहदी वजह अल्लाह ताला ने जेडे मताले रखे ने, मताले समझते हो, आज एक जगह चांद सऊदीया से भी पहले निकलता है, 3 मुल्क हैं 4 जहां पहले निकलता है, तो उनकी ईद पहले होती है, तो फिर उस दिन का रोजा तो ईद का रोजा बनता है ना। तो इसलिए समझिए वल्लाहु ताला आलम, नाम यौम अरफा का है, तारीख 9 है, और यही बेहतर और अफजल है जिसे मैं समझता हूं। अगर किसी की राय इससे हट करके है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या फौत शुदगान की जानब से कुर्बानी, ये भी सवाल बस जान नहीं छड़ता। सर जी जिंदा लोगों को नमाज नहीं पढ़ होंदी, मरियां दी पढ़नी है, अपनियां होंदियां नहीं उन्हां दियां देनियां ने। यार जो जिंदा लोग है ना, किसी फौत शुदा की कुर्बानी देनी, उस जिंदा को भेज दो, पहली बात। दूसरी चीज, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत सिस्टम रखा है, अगर वालिदैन की तरबियत तुम्हारे मामलात में शामिल है तो कुर्बानी कर रहे हो ना, तुम नियत करो या ना करो, इरादा करो या ना करो, एक कुर्बानी एक घर वालों की तरफ से है। ये नहीं कि ये अब्बू की अम्मी की अल्लाह की रहमत को तंग और महदूद नहीं करें, पूरे खानदान के एक एक फर्द को जो जिंदा है उतना सवाब मिलेगा एक बकरे का जितना बड़े को करने वाले को मिला है। और हर उस बुजुर्ग को, दादा को, दादा परदादा आदम अलैहिस्सलाम तलक
जितने हमारे आबा व अजदाद हैं ये उनके खाते में भी अजर और सवाब सदका जारिया बन के जाना है इंशाअल्लाह। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं और इस सवाल में गुम होने की भी जरूरत नहीं। अजान के बाद दुरूद शरीफ जो है कि इमदादी पढ़ सकते हैं। सर जी जेड़ा मर्जी पढ़ लो, दरूद सारे ही चलणगे, असी रोकते नहीं, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक पढ़ना है, समझ रहे हो, लोकल और डोमेस्टिक बड़ी मार्केट में चीजें मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने जैनवन लेना है तो वो दरूद इब्राहिमी है जो अजान के बाद आपने पढ़ा है। बात समझ रहे हैं? चलने को तो मार्केट में हर चीज चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने जैनवन क्या है, लेना क्या है, चलाना क्या है। वो वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्राहिमी की शक्ल में। मस्जिद के आगे कब्रिस्तान हो तो नमाज होगी? जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। मस्जिद के आगे कब्रिस्तान, अगर मस्जिद बनाई गई है बाद में वहां कब्रिस्तान की जगह मुख्तस हो गई है, कब्र पहले है, फिर तो बिल इत्तेफाक कोई हर्ज नहीं, लेकिन दरमियान में दीवार है, आपकी नीयत कब्रों को सजदे की नहीं, तो दुरुस्त है। अगर कब्रिस्तान के अंदर जानबूझ के मस्जिद बनाई गई है तो यह नुक्ता नजर भी है, महल नजर भी है, इसके ऊपर सोचा जा सकता है और देखा जा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मस्जिद नबवी में भी तो कब्र है। सुन लो, न मस्जिद नबवी के अंदर कब्र है, न कब्र के ऊपर मस्जिद नबवी है। रसूल सल्लम की मस्जिद साइड पे थी, हुजरा साइड पे था, वहां पैगंबर जहां फौत होते हैं वहीं पे दफन होते हैं, तो तदफीन उनकी वहां है। तब ये कब्र मस्जिद नबवी में नहीं, और मस्जिद नबवी भी कब्र के ऊपर नहीं। बाद में तौसी के तहत जरूरत पड़ी तो कई दफा आप देखते हैं कि बड़ी सारी जो है वो कब्रिस्तान सड़कों के नीचे भी आ जाते हैं, तो कब्र के ऊपर से गुजरना मना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इमरजेंसी के साथ उनका हुक्म बदलता है। एक सवाल है कि क्या मार्केटिंग, नेटवर्किंग यानी ऑनलाइन ये जो क्या लिखा हुआ है, अर्निंग, अच्छा बिजनेस करके कमाना हलाल है? प्लीज थोड़ी सी वजाहत कर दें। भाई बड़ा वाज़ेह सा सवाल है, इसमें जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। जैसे बगैर ऑनलाइन के लाइव जो आप बेचते हैं उसमें भी कुछ हलाल है, कुछ हराम है, कुछ सही है, कुछ गलत है। ऑफलाइन में जैसे हम बैठ के करते हैं, इसी तरह ऑनलाइन में अगर सौदा मजहूल है, पता ही नहीं क्या है, कैसा है, कहां है, और स्टॉक आपके हाथ में भी नहीं है, जस्ट जो है वो कागजी कार्रवाई है या फोन की या एक मैसेज की, तो फिर ये सिर्फ महल्ले नजर ही नहीं है, पूरी तरह महल्ले नजर है। जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? जिना के जुमरे में। देखिए ना, उनके वसाइल हैं, जराए हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उससे पैसा निकालते हैं। वो सूद के जरिए है, वो धोखे के जरिए है, वो फराड के जरिए है, वो डाके के जरिए है, वो लोगों की जेब मार के है, वो किस तरीके से है तो देखा जाएगा। अगर आपको सोर्सेज का इल्म है तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो मेरे भाई मशकूक है ये कम अज कम, और जो मशकूक है उसे छोड़ना भी इज्जत को और ईमान को बचाना होता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।